Hi, I'm Prem Jyotish. Hi, I'm Meher Bhasin and you are watching One on One with Prem Jyotish. Hello and welcome to One on One with Prem Jyotish ji, and I'm your host Meher Bhasin. Ours is a very comprehensive show based on the science of numerology and astrology with the world-renowned numerologist and astrologer Shri Prem Jyotish ji. Hello Prem ji and welcome to the show. Thank you, Meher, and thank you for your email and response. I hope my guidance is helping everyone out there. And today, Premji's taken his time out to be with us in the studio because today is a very special email dedicated episode where I will be reading out your emails that you've written into us with your worries, your problems, and something that is troubling you, whether it's finance or business or even a family matter. And I will read them out and Premji will give you his best remedies, guidance, and solutions. So let's find out who sent in the first email for today. और Premji, आज की पहली email जाई है. This is from Mr. OG. Gender is male. Date of birth is November 21st, 1974. Place of birth is Kanpur. Time of birth is 11:20 in the evening. Wants to know and get the help and guidance towards her husband's health, career growth and wealth. What remedies would you recommend for the betterment of his life? And when will he get his green card is the next question. And she needs your help and guidance for her husband. देखिए मिस्टर ओजी, अगर आप 21 नवंबर 1974 इनका कानपुर 11:20 PM का बर्थ है, इनका कैंसर राइजिंग है, मून साइन इनका एक्वेरियस है, कर्क लगन है और कुंभ राशि है इनकी. कर्क लगन का लॉर्ड होता है चंद्र, राशि का लॉर्ड है शनि. शनि दशा चल रही है 2010 से जो कि 2029 तक रहने वाली है. प्लस इनको साढ़े सती भी लगी हुई है 2020 से जो कि 2027 तक रहने वाली है जी. अब सैटर्न जो है 12th हाउस में बैठा हुआ है. 12th हाउस आपके ट्रैवल से, ओवरसीज सेटलमेंट से भी जुड़ा हुआ है. तो साढ़े सती जो एक कार्मिक जर्नी है जिसमें आपको पास्ट लाइफ और इस लाइफ का कहते हैं जो आउटकम मिलती है. अब शनि दशा भी है तो डबल सैटर्न है और शनि में राहु चल रहा है. तो राहु बेसिकली इक्लिप्स करता है मून को, बट सैटर्न को स्ट्रॉन्ग करता है क्योंकि उसका मित्र है. जो राइजिंग लॉर्ड मून है उसका नहीं होता. तो टेक्निकली ये राहु पीरियड जो है वो हेल्थ को खराब कर रहा है इनके. और साढ़े सती भी इम्पैक्ट कर रही है जो कि 2027 जुलाई तक रहने वाली है. और उससे पहले इनके जो लीगल मैटर्स में भी कोई इस तरह की आउटकम जो है पॉजिटिव नहीं आएगी. ये नहीं कि कोई डिनाइल या इस तरह की चीज़ होगी, बट देयर इज़ गोइंग टू बी ए डिले. बट इन 2027 आफ्टर जुलाई एंड फरवरी के बाद चीज़ें काफ़ी बेटर होनी शुरू हो जाएंगी जिससे हेल्थ और लाइफ की जो सेटलमेंट है जो लीगल मैटर्स की वो भी इनकी यहाँ पे हो जाएगी. So then Premji, what would you recommend for him to do or something that she can do for him as well? देखिए इनको एक पर्ल पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का अपनी राइट हैंड की रिंग फिंगर में. उसको एक सिल्वर में मंडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने जिससे जो है लग्नेश लॉर्ड स्ट्रांग हो जाए. साढ़े सती चल रही है तो सैटरडे के दिन इनको मस्टर्ड ऑयल में अपने फेस की रिफ्लेक्शन देखते रहना चाहिए. सरसों के तेल को किसी स्टील बाउल में डालें, फिर चेहरा देख के फिर उसमें लौंग डाल के उसको बाहर किसी पेड़ या पत्थर पे गिरा दें जिससे जो शनि छाया वो भी ख़त्म हो जाएगी. एंड थर्ड थिंग, इनको लॉर्ड शिवा की पूजा करते रहना चाहिए. शिवलिंग पे मिल्क और वाटर चढ़ाएं या मंडे का उपवास करें तो जिससे जो लग्नेश लॉर्ड जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा. सो इन सब चीज़ों से काफ़ी बेटरमेंट आ जाएगी हेल्थ में भी. एंड ओवरऑल जो चीज़ें डिले हैं तो उसमें कुछ जो है पॉजिटिव आउटकम आनी शुरू हो जाती है. So eventually he will get the green card, but sometime maybe after 2027. After February. Thank you, Premji. So like Premji is saying, yes, your husband seems to be going through a little bit of a tough time because his planets are not aligned properly. He himself needs to do the mustard oil remedy, making sure that you are not around because you don't want the effect or the bad effect of that remedy coming onto you. It is as per his birth chart that Premji feels is the right thing for him to do. Also on Mondays he need to Shiv Ji ki puja and he will eventually get his green card. और दोस्तों अब वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the first 4 zodiac signs. So let's find out the predictions for Aries for this week. Premji, what are the predictions for Aries? एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए देखिए हेल्थ को लेके कंसर्न रहेगा. किसी बड़े फैमिली, एल्डरली फैमिली मेंबर को लेके या किसी बच्चे को लेके भी कंसर्न हो सकता है. अवॉइड करिएगा हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स लाइक गैम्बलिंग इस वीक के अंदर. लोगों के साथ नए रिलेशंस बनेंगे जिसकी वजह से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा. काफ़ी सोशली
वीक है आप लोगों के लिए। पर्सनल प्रोग्रेस बनी रहेगी काम के ऊपर, जिसकी वजह से आगे चल के आपको काफ़ी बड़ा कैश फ्लो आने वाला है। टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए देखिए, फैमिली मेंबर्स की हेल्थ को लेके थोड़ा कंसर्न रहेगा। ये अच्छा पीरियड है जो लोग पार्टनरशिप में नया वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, बट सीक्रेटली इसको करिएगा, अपने फ्यूचर प्लान किसी को डिस्क्लोज मत करिएगा। ये अच्छा टाइम है अगर आप अपने प्रोफेशनल स्किल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं। दोस्तों से इंटरेक्शन रहेगा, फैमिली के साथ भी अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़े से डिसएग्रीमेंट भी आ सकते हैं। जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों के लिए देखिए, अच्छा बैलेंस बना रहेगा आपके काम और आपकी सोशल लाइफ के अंदर। ये अच्छा टाइम है विद फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ लेके। हेल्थ प्रॉब्लम थोड़ी सी कंसर्न रहेंगी, थोड़ी पेशेंस बना के रखिएगा। किसी से भी इंटरेक्शन या बातचीत करते हैं तो थोड़ा सोच समझ के करिएगा। कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए देखिए, कहीं से आपको ऑस्पिशियस न्यूज़ आएगी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी है जो आपका मेन फोकस रहेगा इस वीक के अंदर। फैमिली मेम्बर्स जो हैं आपको काफ़ी बिजी रखेंगे। ये अच्छा टाइम है जो लोग अपना नया कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। जो लोग सिंगल हैं उनको सक्सेस मिलेगा अपने रिलेशनशिप्स के अंदर। Thank you, Premji, for the predictions. और दोस्तों, good news is that Premji will be here with us because today is a very special email dedicated episode. However, we need to take a very small break, so don't go too far. It could be your email I read out next, but we'll see you right after this short break. Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotishi, and Premji's here in the studio to help all the viewers understand how is it that his guidance remedies can help all of you, because you have written into us. So today is a very special email dedicated episode, but before we went on to the break, we were talking about a gentleman whose horoscope Premji read, but there's a certain question that I have for Premji for you, so hope you're watching the show. So Premji, you said that he has Sadesati and he has Shani Dasha. So it has double Shani impact on his horoscope. So is that something that is making things more difficult for him, making life harder for him, and how can he overcome that? देखिए, क्या होता है कि साढ़े सती हर आदमी की लाइफ में 3 बार आती है। तो साढ़े सती मीन्स जी, जब सैटर्न आपके ज़ोडिएक साइन में जो आपके मून साइन से निकलता जाएगा, क्योंकि इट स्टेज इन 2.5 years इन हर एक ज़ोडिएक साइन में। तो साढ़े सती कार्मिक जर्नी है, पिछली जन्म की भी इस जन्म की भी जो हम करते हैं उसकी वो आउटकम देता है। तो शनि डेस्टिनी डिसाइडर है, तो वो हर आदमी की लाइफ में आती है। अब अगर किसी की शनि की महादशा चल रही है और ऊपर से साढ़े सती भी आ जाए तो डबल सैटर्न हो गया, तो इट मीन्स वो डबल आपको पनिश करेगा या बहुत ज़्यादा डबल पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा। बेस्ड ऑन क्या पोजीशन है उसकी, क्या वो आपका राइजिंग लॉर्ड है, कि आपके वो बेनिफिट वाले एरिया में बैठा हुआ है। तो अगर वो, अब इनके केस में मून इज़ द राइजिंग लॉर्ड, मून एंड और इनका मून साइन जो है वो है कुंभ राशि है, जिसका लॉर्ड शनि, चंद्र शनि वैसे ही विष योग देते हैं एक दूसरे को। तो ऊपर से साढ़े सती आ गई वो भी और शनि की दशा भी, तो इम्पैक्ट ऑन हिम इज़ सो पावरफुल। जो शनि लीगल मैटर्स में और हेल्थ में फिर वो करता है जी, पनिश करता है, लेकिन उसकी जो जाते जाते आउटकम आपके फेवर में देखे जाता है, क्योंकि यू आर बेसिकली प्लेस्ड इन द, आपकी जो कार्मिक जो जर्नी, जो भी नेगेटिविटी है, वो 2 चीज़ें उसको मिलके ख़त्म करनी है, बट यू आर स्टिल गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस, बट व्हेन इट फिनिशेस इट गिव्स यू व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। Oh, that's wonderful. Thank you, Premji. So, dosto, hope all of you understood how impactful it is Sadesati and Shani Dasha, but it does give you benefits once it leaves your horoscope. But time now to take the next email that you've sent and written into us. और Premji, अगली email जो आई है, this is from Mr. SS. Date of birth is August 9th, 1992. Place of birth is New Delhi, India. Time of birth is 7:22 in the evening. Is Neelam a good stone for him to wear? When will he get married? And will he settle near or far away from Toronto? This is a very concerned parent who wants your help and remedies. देखिए मिस्टर SS, अगर आप 9 अगस्त 1992 न्यू दिल्ली, इनका 7:22 PM का बर्थ है जी। इनका कैप्रिकॉन राइजिंग है और जो इनका जो मून साइन है वो सेजिटेरियस है, मकर लगन है और धनु राशि है इनकी। मकर लगन का लॉर्ड होता है शनि
एंड राशि का लॉर्ड है इनका गुरु, एंड इनको जो दशा चल रही है इस वक्त जो है चंद्र की चल रही है। मून इज सिटिंग विद द राहु, तो जन्मपत्री में लूनर इक्लिप्स है 2019 से लेके 2029 बेसिकली सितंबर तक ये रहने वाला है। और इस वक्त जो है मून ट्रांजिट कर रहा है शनि के अंदर, तो मून शनि में जाएगा तो विष योग क्रिएट किया हुआ है इस वक्त, तो जिसकी वजह से इंसान इमोशनली और मेंटली थोड़ा वो स्ट्रगल करता है लाइफ के अंदर। और 12th हाउस है तो ट्रैवल का, तो जो इनकी जो सेटलमेंट है बेसिकली जहाँ जैसे टोरंटो रहते हैं तो उससे वो कहीं फार लोकेशन पे जाएंगे, वो आसपास नहीं रहने वाले हैं। मास्टर प्लैनेट इनका सैटर्न है, तो सैटर्न शनि में ही बैठा है, एग्जॉल्टेड है, तो इट मीन्स ही कैन वेयर ए ब्लू सफायर बेसिकली, दैट इज हिज बर्थ स्टोन। 5 to 6 कैरेट का इनको अपनी राइट हैंड की मिडिल फिंगर में वाइट मेटल में सिल्वर या वाइट गोल्ड में पहनना चाहिए सैटरडे के दिन। एंड मैरिज के लिए देखिए, मैरिज जो है वो कराता है लाइफ के अंदर इनका जब मून जाएगा वीनस के अंदर 2027 जुलाई के बाद। वीनस इज ए रिलेशनशिप लॉर्ड विच इज द हाउस ऑफ 7th हाउस, और 7वें स्थान में इनके सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। तो सन जो है कर्क राशि में मून के अंदर जाए, मून इज कोल्ड प्लैनेट एंड सन वहाँ पे जाके वीक हो जाता है, तो बेसिकली सूरज का इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन जुलाई में जैसे ही 2027 में मून में वीनस आएगा, दैट्स द टाइम दैट लाइफ में इनको राइट पार्टनर वो चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी। So Premji, are there any remedies for him to do? Because we already mentioned he needs to wear the blue sapphire. Is there something else you recommend? क्योंकि लूनर इक्लिप्स है और चंद्र शनि विषयोग देते हैं, तो लॉर्ड शिवा की पूजा करते रहना चाहिए इनको। मंडे के दिन ही अगर ये वेजिटेरियन रहें या उपवास करें, एक टाइम खाना खाएं, तो उससे काफ़ी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। 12वें स्थान में बैठा है तो चंद्र बच्चों से भी जुड़ा है, तो किसी स्कूल या इंस्टीट्यूशन में या एजुकेशनल प्लेस में इनको एवरी ईयर अपने बर्थडे के बाद डोनेशन करते रहना चाहिए। Thank you, Premji. So like Premji is saying that you are right about finding out about the blue sapphire for your son. That is a stone for him. He can try it out under the pillow for 2-3 days like we always talk in the show. If he gets good dreams, positive results, that is exactly the best time for him to start to wear it. On Mondays, you need to be vegetarian and do Shivji ki puja besides the other remedies that Premji has mentioned for him to do. और दोस्तों वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the next 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Leos for this week. Premji, what are the predictions for Leos? लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए देखिए, इस वीक के अंदर आप ट्रैवल करेंगे, अचीव करेंगे, बैलेंस बना के रखेंगे अपने काम और अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर। थोड़े अपने एक्सपेंसेस को चेक करके रखिएगा, कुछ लोगों की प्रमोशन भी हो सकती है काम के ऊपर। Virgo? वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए देखिए, आपको बैलेंस बना के रखना है अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जो इन्वेस्टमेंट्स है वो आपका मेजर फोकस रहेगा। काफ़ी बिजी रहेंगे इस वीक के अंदर, थोड़ा सा समय एंटरटेनमेंट के लिए भी निकालिएगा, और थोड़ी अटेंशन जो भी आपके पेंडिंग लीगल इश्यूज़ हैं उसके ऊपर खास करके ज़रूर ध्यान दीजिएगा। लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए देखिए, थोड़ा केयरफुल रहिएगा, जो भी आप काम करते हैं हर एक स्टेप को केयरफुली सोच समझ के करिएगा। थोड़े टाइम अपनी जो आपकी डोमेस्टिक प्रॉब्लम चल रही है उसको भी थोड़ा समय दीजिएगा। अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान रखिएगा। कुछ लोग जो है नया वेंचर स्टार्ट करेंगे जिससे उनकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए, अच्छा समय आप लोगों के लिए जिसमें गेन्स होगा बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छा करेंगे, थोड़ा उनको फोकस ज़्यादा बना के रखना पड़ेगा। थोड़ी टेंशन अपने पेरेंट्स की हेल्थ को दीजिएगा, थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम्स आप लोगों की बढ़ सकती हैं। Thank you, Premji, for the predictions. और दोस्तों, Premji is given predictions only for the week. It's a generic view that Premji kind of gives as a guideline, only for you to have an umbrella in case there's something major that's going to happen. It's just a glimpse of what's really going to happen. But if you really want to know and understand exactly what you're going through in life, quickly write into us at prem@premjyotish.net. We'll see you right after this short break.
Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotishji. Premji's taken his time out to be with us in the studio because today is a very special email dedicated episode. We've been talking about emails and taking questions related to those emails. So if it could be your email that I read out next, so let's see who sent in the next email. और Premji, अगली email जाई है. This is from Mr. GSN. Date of birth is October 14th, 1992. Place of birth is Amritsar, Punjab. Time of birth is 8:45 in the morning. He has studied and lived in Canada with the parents. They want to know about the overall future as far as his job prospects are concerned, and they also want to know when and who will he get married to. देखिए मिस्टर GSN, अगर आप 14 अक्टूबर 1992 अमृतसर पंजाब 8:45 AM का इनका बर्थ है जी. इनका लिब्रा राइजिंग है, मून साइन इनका एरीज है, तुला लगन है और मेष राशि है इनकी. तुला लगन का लॉर्ड है शुक्र, जो इनके लगन में ही बैठा है मरकरी के साथ. तो वीनस इज वीनस एग्जॉल्टेड है, लक्ष्मी योग है जन्मपत्री के अंदर. एंड दशा इनको राहु की चल रही है और राहु में जो है वो शनि है. जो सैटर्न जो है बेसिकली वो भी इनकी जन्मपत्री में कैप्रिकॉर्न में 4th हाउस में बैठा. तो चौथा स्थान है. ओवरसीज़ का तो इंसान पढ़ता और सेटलमेंट बाहर में ही करता है. जैसे इनका राहु बुध में जाएगा 2026 मार्च के बाद से, दैट इज़ द टाइम जो इनकी लाइफ का जो है बेस्ट टाइम स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा. क्योंकि राहु बुध में जाए और बुध शुक्र के साथ बैठा तो इट मीन्स उस पीरियड के अंदर इनकी मैरिज के योग, सेटलमेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखनी शुरू हो जाएगी. क्योंकि कहते हैं जन्मपत्री में लक्ष्मी योग है, तो लक्ष्मी कैसे आएगी? 7th का लॉर्ड 7th 1st हाउस में ही बैठा हुआ है अपने ही साइन के अंदर एग्जॉल्टेड. तो शादी के बाद भाग्य उदय हो जाता है बेसिकली. तो जैसे ही मैरिज होगा तो इनकी लाइफ का सारा ग्राफ जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा. बट द बेस्ट टाइम टू सेटल डाउन इज़ जो है इनकी जन्मपत्री में वो 2026 मार्च के बाद होता है. उससे पहले अगर ये कोशिश भी करेंगे तो एक तरह से डिसअपॉइंटमेंट या कहीं बात नहीं बन पाएगी. So then how can he improve and get a better job and for his health? Any remedies or recommendations? इनको एक डायमंड पहन के रखना चाहिए, 1 कैरेट का प्रिंसेस कट अपनी राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक वाइट मेटल में फ्राइडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने, जिससे जो है लग्नेश लॉर्ड जो है उनका वो स्ट्रांग हो जाए. 7th हाउस में मून है तो लॉर्ड शिवा की पूजा करनी चाहिए. मंडे के दिन शिवलिंग पे मिल्क और वाटर चढ़ाए या ओम नमः शिवाय बोलें या एक टाइम खाना खाएं या वेजिटेरियन रहें उस दिन, तो उससे काफ़ी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाएगा. एंड द थर्ड थिंग इनको क्या करना चाहिए, वीनस इज़ ऑल्सो ए फीमेल प्लैनेट, तो किसी भी फीमेल ऑर्गेनाइजेशन में ट्वाइस ए ईयर इनको डोनेशन करते रहना चाहिए, जिससे जो है कहते हैं आप अपनी कार्मिक जो है डेट को भी पे कर रहे हैं. Thank you, Premji. So like Premji is advising you that yes, your son is going to get a very good job offer and he will get married, but try not to be in a rush till 2026 because something or the other may end up in a disappointment for you. You also need to make sure he has a very good quality untreated unheated stone, stays vegetarian on Monday. I mean, if there's a health issue, of course, you know, he can have fruits or something, but try not to be a non-vegetarian because things will turn around for him. और दोस्तों वक्त आ गए for us to understand from Premji the predictions for the last 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Sagittarius for this week. Premji, what are the predictions for Sagittarius? Sagittarius एंड धनु राशि वालों के लिए देखिए ये रिलैक्स और टेंशन फ्री वीक है आप लोगों के लिए. जो भी पहले के एफर्ट्स हैं वो आप अच्छे रिजल्ट्स दिखाने शुरू कर देंगे. पैसे का इनफ्लो जो है काफ़ी अच्छा है. कुछ लोगों को कहीं से अच्छी खबर भी आएगी. काफ़ी एनर्जेटिक और पीसफुल रहेंगे आप इस वीक के अंदर. कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के लिए देखिए जो ऑब्स्ट्रक्शंस है काम के ऊपर काफ़ी बढ़ जाएंगी. किसी के ऊपर आप रिलाई मत करिएगा काम के ऊपर. फैमिली लाइफ के अंदर भी आपको थोड़ा और ज़्यादा आप कंफर्टेबल होना शुरू हो जाएंगे. बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे आपको इस वीक के अंदर. एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए देखिए प्रॉफिटेबल वीक है ओवरऑल. चीज़ें पहले से और भी ज़्यादा बेटर हो जाएंगी. जितने भी टफ टास्क हैं आप उनको अच्छे से परफॉर्म करेंगे और सक्सेस भी मिलेगा आपको. ओवरऑल इट विल बी ए बिजी वीक जिसमें काफ़ी पॉजिटिव आउटकम्स हैं. पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए देखिए काफ़ी बिजी वीक है आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के अंदर. जो भी चीज़ें होंगी आपके फेवर में आएंगी. जो भी आपने हार्ड वर्क किया उसका अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा. जो भी प्रॉब्लम्स आपके काम के ऊपर चल रही थी वो भी सॉल्व हो जाएंगी. रिजल्ट ऑफ जो किसी तरह का एग्जामिनेशन जो इंटरव्यू आपने दिया है वो भी आपके फेवर में आएगा. वो थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा एट द सेम टाइम.
Thank you, Premji. You came to the studio, took your time out, and explained to all the viewers what exactly is not going correctly with their birth chart and what is also going correctly in their birth chart. So, dosto, Premji has given you guidance and remedies as per your birth chart. If you want, you need to follow it. Wait for 43 days for the effect to actually take an impact in your life. Try and stay vegetarian on the days that he has mentioned, and you will see beautiful results for yourself. And to all the other viewers who want Premji's remedies and guidance, quickly write into us at prem@premjyotish.net. This is Meher Bhasin along with Premji saying namaste. See you next week.